आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अपोजिशन ने बजट को बताया सरकार बचाओ बजट। राज्यसभा से किया वॉकआउट। निर्मला सीतारमण ने कहा हर बजट में नहीं ले सकते सभी रियासतों का नाम। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मिले किसान नेता, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर चलाएंगे तहरीक। राहुल ने कहा एमएसपी दिलाने के लिए इत्तेहाद के लीडरान से करेंगे बात। मध्य प्रदेश के स्कूल में शरपसंदों का हमला। मुबैना हिंदुत्ववादी अनासिर ने अंग्रेजी बोले जाने के खिलाफ किया हंगामा। प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज करने का दबाव। मुश्तइल कांवड़ियों ने ई रिक्शा चलाने वाले के साथ की मारपीट, रिक्शा भी तोड़ दिया, मामला दर्ज। नेपाल में तैयारा हादसे में 18 लोगों की मौत। जहाज ने आजमाइश के लिए भरी थी उड़ान, तकनीकी खराबी से पेश आया हादसा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद ऐवान में बजट को लेकर हंगामा हुआ। वक्फे सिफर में राज्यसभा में बहस के दौरान अपोजिशन ने वॉकआउट किया। अपोजिशन के अरकान वज़ीर मालियात के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान से बाहर चले गए। इंडिया ब्लॉक के लीडरों ने कहा कि इस बजट से 90% मुल्क गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, वो इसलिए कि यहाँ के वज़ीर आला के भरोसे मरकज़ की सरकार चल रही है। अपोजिशन के जरिए बजट को भेदभाव वाला बताने पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सभी रियासतों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। Leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect, that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this House yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation, and now that they have come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal. Thank you, even the schemes, Chairman, sir, you should allow me to say this. Even the schemes which have been allocated to Bengal. Mr. Saket, sir, you asked me to speak. No, please don't shout. Don't shout. Please take your seat. Take your seat. Honorable members, please take your seat. One second, ma'am. Honorable members. Complete, sir. Okay, finish. Finished. 2 minutes. Sir. 2 minutes. Yes, I will speak on Bengal. I've already spoken on Maharashtra for the members who chose to walk out of the House without listening to my reply. Sir,
इससे पहले पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से कबल अपोजिशन के अरकान ने बजट के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन का कहना है कि ये मोदी सरकार बचाओ बजट है। सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर जमा होकर मुजाहरा किया। अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया ने बजट में अपोजिशन की इक़्तिदार वाली रियासतों के खिलाफ भेदभाव करने का दावा किया। सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। नहीं, जो अन्याय हुआ सबको बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता जब हमारे 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीज़ें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है और इसके लिए सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सर, नीति आयोग की बैठक होनी है, उसमें 4 सीएम स्किप कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के भी सीएम, ये मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि अगर उनके लिए कुछ नहीं है तो किसी बातचीत करने में भी क्या फायदा, यही विषय है। सरकार चाह रही है कि आप लोग आइए, सदन में बातचीत होगी, हर मुद्दे पे बातचीत होगी। पार्लियामेंट के अंदर तो बातचीत होगी, अभी चर्चा होगी बजट पे, देखते हैं क्या होता है। आई हैव नो रिएक्शन। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. ये प्रोटेस्ट इसके लिए है जिस तरीके से बजट में भेदभाव हुआ है, जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया गया है। और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। राज्यसभा में बजट पर बहस के दौरान वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण अपोजिशन पर बरहम हो गई। अपोजिशन के दावों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर बजट में सभी रियासतों का नाम नहीं लिया जा सकता। This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation, and now that they've come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal. Thank you, even the schemes, Chairman, sir, you should allow me to say this. Mr. Saket, Sir, don't you play. asked me to No, speak. please don't shout. You Don't shout, have don't asked me shout. to speak. This is not a shouting place. Is it a shouting place? I will speak on Bengal. I've already spoken on Maharashtra for the members who chose to walk out of the house without listening to my reply.
Sir, let me have some order, sir, in the House. Honorable Finance Sir, Minister, let me tell you, you sir. will have ample opportunity to respond to each Yes, of them. sir, but this when kind you of a finally statement respond. by a very senior member of the House, leader of the opposition, it's I think, not acceptable. आम बजट पर बरसर इक़्तिदार जमातों और अपोजिशन का रद्द-ए-अमल जारी है। एक तरफ जहां सरकार और उसकी हलीफ जमातें बजट की तारीफ कर रही हैं, वहीं अपोजिशन बजट से बरहम है। कांग्रेस सदर राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट सिर्फ अपने हलीफों को मुतमईन करने के लिए है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं दिया गया है। तो ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क भैया रास्ता क्यों अरे सबको कुछ नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बजट में उत्तर प्रदेश के साथ तफरीक बरती गई है। उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेसवे वो बिहार को दे रहे हैं, उसे अगर यूपी से भी जोड़ दिया जाए तो मुल्क का ज्यादा भला होगा। ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है? जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है, क्या आप भी उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि मुल्क के करोड़ों किसानों और नौजवानों और आम लोगों को इस बजट से मायूसी हुई है। करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से राहत मिलेगी, डीजल पेट्रोल के टैक्स में छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि हम आपके फसल का दाम दोगुना करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दोगुना करेंगे, उस वादे का क्या हुआ? देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एमएसपी दोगुना होगी, उसके लिए अलग से बजट में कोई प्रावधान होगा, नहीं किया आपने। देश के करोड़ों युवाओं को उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती आप बहाल करेंगे और उसके लिए सेना में अलग से बजट का प्रावधान करेंगे, आपने नहीं किया। इस देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से आप राहत देंगे, डीजल पेट्रोल के टैक्स में कुछ आप छूट देंगे, वो आपने नहीं किया। वो वर्ग निराश हुआ है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानी पर यह बजट पूरी तरीके से खामोश है। नंबर 1, आगे आ जाते हैं। इस देश के छोटे निवेशक, जिनकी संख्या करीब करीब 10 करोड़ है, जो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं और अपने घर के खर्च को चलाने के लिए वो एक रास्ता चुनते हैं, कुछ कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। आपने क्या किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 10 से 12.5% कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 15 से 20% कर दिया। 10 करोड़ छोटे निवेशक, मतलब
लगभग 30 करोड़ लोग, उनके परिवारों की संख्या आप मिला लीजिए तो आपने प्रभावित कर दिया। तो एक बड़े वर्ग को आपने निराश किया और आप देखिए शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है, गिरा है। इसका मतलब कि इस बजट से घोर निराशा हुई है शेयर बाजार को भी और आम लोगों को भी। किसान मजदूर मोर्चे और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से मुल्क के 12 किसान लीडरों का एक वफ्द अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी से मिला। इस मौके पर कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन के.सी. वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉक्टर अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश भी मौजूद थे। खबर है किसानों को राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया जा रहा था। किसान लीडरों से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हम इंडिया अलायंस के दूसरे लीडरों से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। So what is the problem? But what did they say anything? Why they were Some allowed? Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. राहुल जी, आप नेता क्या कहा जा रहा है? राहुल जी, आप नेता विपक्ष हैं, आप नेता विपक्ष हैं और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसानों को? ये तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया? राहुल जी, रीजन कोई रीजन बता रहे हैं क्या होती है किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। हक की लड़ाई संसद के भीतर मैं दो शब्द बोलता हूँ। देखिए हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। आप वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बिहार की राजधानी पटना में भारतीय युवा कांग्रेस के कारकुनान ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मार्च निकाला। पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बिहार में बढ़ते जराइम, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक से आम परेशान हैं। वहीं खुसूसी रियासत के नाम पर सरकार झूठ बोल रही है। सरकार की इस नाकामी और मनमानी के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। देखिए, काफी प्रदर्शनकारी काफी उग्र थे और उनका अपने हिसाब से वो प्रदर्शन करने चाह रहे थे। जो मार्ग उनका अधिकृत नहीं है, जो कम्प्लीटली गैर नाजायज है, उस मार्ग को उन्होंने उपयोग किया और उपयोग करके बल प्रयोग कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने जो कुछ लोगों को डिटेंशन किया, उसके बाद उग्रता उनकी और बढ़ गई। फिर हम लोगों ने जो यहाँ पर वाटर कैनन लगी हुई थी, उनके पानी का हमने उपयोग किया। उसके बाद जो भीड़ थी उनको इतर कर दिया गया। फिलहाल हम लोग ने स्थिति को सामान्य करा दिया है और जो मार्ग है, जो अवरुद्ध मार्ग थे, उनको भी बहाल करा दिया गया है। ये लोग परमिशन लेकर आए थे प्रोटेस्टर? देखिए, ये रूट मैंने पहले ही बताया कि ये रूट उनको परमिशन के लिए है ही नहीं। और विरोध प्रदर्शन करना था उनको, तो गर्दनीबाग जो क्षेत्र है वहाँ पर उनको विरोध प्रदर्शन करनी है। तो वो और इसमें उन्होंने कुछ उग्रता किया है, कुछ रोड़े भी चलाए गए हैं, जिस कारण से पुलिसकर्मी हमारे कुछ घायल हैं। 2 पुलिसकर्मी घायल होने का अभी तक अपडेटेशन है हमारे पास, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग भेजा है। क्या एफआईआर होंगे? निश्चित। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में मुबैना तौर पर हिंदुत्ववादी गुंडे एक स्कूल में घुस गए और स्कूल में अंग्रेजी बोले जाने के खिलाफ हंगामा किया। इन लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि वो बच्चों से इंग्लिश बोलने को कहती है। आपने तो 2-1 घंटे में जो स्पीच याद कर दिया, नीचे कर ले भाई, ठीक है। जैसे उस बच्चे से माइक छीन लिया था, आप अगर इतनी वो उसकी विद्यार्थियों होती तो ये सब छात्र कहते हैं आप तुरंत कि मेरा वो बनता है, मेरे विद्यार्थी जो आए ये भी मेरे विद्यार्थी है, मैं तुरंत पढ़ लूं। भाई साहब, ये प्राचार्य को श्लोक और शायरी का अंतर ही नहीं पता। श्लोक को शायरी बोल रही है ये भाई साहब। बंदा कॉन्वेंट चल रहा है ना, तो 24 घंटे से नहीं लगेंगे, इसमें कागज चल जाएगा, आप सबकी छुट्टी करा दूंगा। ये मीटिंग है ना,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मिसलीडिंग ऑल ऑफ अस। इधर तो चलेगा वो हिंदू संस्कृति है मैम इधर तो चलेगा गुना के अंदर किसी भी विद्यालय में तो हिंदू संस्कृति चलेगा। यह सर्वे वहां तो सुखना ही होगा। आपकी प्रेयर में भी अगर कोई ऐसी चीज आती हो तो उसको भी विद्यार्थी पता चेंज करवाएगा, उस स्कूल की एक चीज चेंज करवाएगा और नहीं होती तो उसमें ताला मिल जाएगा। ये बिल्डिंग ध्यान रखना। इधर आप अपनी मनमानी मत चलाइए, इधर संस्कृति चलेगा। प्रतिदिन आपको लेकर निकालना पड़ेगा अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए स्टाफ के लिए। प्रतिदिन मंच पर सर्वे बंधु होगा। क्या होगा मैम? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी क्या होगा? सर्वे बंधु। कांवड़ियों की गुंडागर्दी का सिलसिला जारी है। रुड़की में कांवड़ियों ने गरीब का बैटरी का रिक्शा तोड़ डाला। ई रिक्शा चलाने वाले का नाम संजय कुमार है। उससे कांवड़िया टकरा गया था। हालांकि कांवड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके बाद कांवड़ियों के ग्रुप ने उसको खूब पीटा और उसका ई रिक्शा तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वीडियो बनाने वाले ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2024 के इलेक्शन गैर जानिबदार और शफाफ नहीं हुए हैं और नए डेटा के मुताबिक 79 सीटों पर ईवीएम में पड़े वोट और गिनती में निकले वोटों के बीच तकरीबन 12% यानी 5 करोड़ वोटों का फर्क है और इन सभी सीटों पर बीजेपी जीती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया है जिसमें 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। सूर्य एलायंस का तैयारा तकनीकी रखरखाव के लिए पोखरा जा रहा था, तभी हादसा पेश आया। न्यू हैम्पशायर रियासत के एक साहिल पर व्हेल ने एक कश्ती पर हमला कर दिया और उसे पलट दिया। नाव पर सवार दोनों लोग महफूज हैं। जिस वक्त व्हेल मछली ने नाव पर हमला किया उस वक्त आसपास की दीगर कश्तियों पर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। खबरनामे में अभी इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम